Good morning, students. I hope you all are fine. In the last lecture, we have completed question number 1 to 9 from exercise 1.7. And now we are resuming exercise 1.7 with the question number 10. And question number 10 is the cost of 7 integer 2 by 3rd meter of rope is rupees 12 integer 3 by 4th. Then find its cost per मीटर. अब हमें पर मीटर पे कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा है कि भाई 7 and 2/3 मीटर के लिए कितनी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट 12 रुपीज़ एंड 3/4 पैसा. इट्स द रिलेशन 7 इंटीजर 2/3 मीटर रोप का कितना रुपीज़ होता है, 12 रुपीज़ एंड 3/4 पैसा. और यू कैन ऑल्सो बी रीड लाइक 12 इंटीजर 3/4 रुपीज़. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द 1 मीटर रोप का कॉस्ट हमें फाइंड करना है. इट्स हाउ मच रुपीज़. ओके, नाउ वी आर गेटिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 12 3/4 multiply with 1 divide by 7 and 2 by 3. So we know that 12 3/4 divide by 7 2/3. It's a mixed fraction. So first we convert into the mixed fraction into improper fraction. So now we are getting 24 for the 48 plus 3 upon 4 divide by 7 3 is 21 plus 2 upon 3. It become a 51 upon 4 divide by 23 upon 3. So now we are getting डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें. 51 upon 4 multiply 3 by 23. So now we are getting 54 multiply with 3 upon 4 multiply with 23. यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा, कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है. सो वी कैन मल्टीप्लाई अगेन. 3 1 जा 3, 5 6 जा 51 53 upon it become a 23 upon 4. So 4 3 are 12, 4 2 is 8 plus 9 93. It's a mixed fraction. It's a mixed fraction. So we can convert into the improper fraction. So we can divide it 153 divide by 92. So 92 ones are 92. Now we are getting the subtraction. 3 minus 2 become a 1 and 15 minus 9 become a 6. Okay, then answer will be 1 rupees and 61 upon 92 rupees. For a 1 meter, the cost of therefore cost of 1 meter rope is 1 integer 61 upon 92 rupees. It's our answer. Okay, write down in your book. Now question number 11. The cost of 2 integer 1/3 meter of cloth is rupees 75 upon 1/4. Then find the cost of cloth per meter. प्रीवियस वाला ही था, सेम टू सेम एग्जाम्पल नहीं करवाऊँगा, ठीक है, आप कर लेना. Now 12 number 12. By what number should
minus 33 upon 60 be divided to get minus 11 upon 4. So here let the other number be x, and if x is divided minus 33 upon 16 divided by x, then we can get minus 11 upon 4. ठीक है. So which number is divided by minus 33 upon 16 to get minus 11 upon 4? इस तरह से एग्जाम्पल है. तो हम क्या करेंगे, या तो ये डिवीजन वाला टर्म सामने मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे, है ना. तो माइनस डिवीजन बाई 11 एक्स था, वो सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. देन माइनस 33 अपॉन 60 इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 4. डिवीजन में था वो कहाँ पे आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा. मल्टीप्लाई विथ एक्स. नाउ minus 11 upon 4 is the relation with the multiplication. If we transpose from the right hand side to left hand side, it become in the division relation as per the transpose method. So minus 33 upon 60 as it is, ये मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पे आएगा तो डिवीजन मेथड में आएगा. माइनस 11 अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स. अब यहाँ पे हमें रेशनल नंबर का डिवीज़न आता है कि माइनस 33 अपॉन 60 डिवीज़न कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन की साइन में, और यहाँ पे आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू एक्स. सो हियर माइनस 33 मल्टीप्लाई विथ 4 अपॉन 16 मल्टीप्लाई विथ माइनस 11 इज इक्वल टू एक्स. माइनस माइनस कट 11 3 जा 33 and 4 4 जा 16. So now we are getting x is equal to 3 by 4. The other number is 3 by 4. 13. Divide the sum of minus 13 by 5 and 12 upon 7 by the product of minus 31 by 7 and minus 1 by 2. तो फर्स्ट वी अंडरस्टूड द क्वेश्चन. ओके, डिवाइड द सम, हमको डिवाइड करना है. ठीक है, क्या डिवाइड करना है, माइनस 13 अपॉन 5 एंड 12 अपॉन 7 का सम किन से डिवाइड करना है. डिवाइड करना है पर कौन से नंबर के साथ डिवाइड करना है. सो बाय द प्रोडक्ट ऑफ 13 upon 7 multiply minus 1 by 2. So according to the question, minus 13 upon 5 plus 12 upon 7, इन दोनों का सम हमें डिवाइड करना है. किन से डिवाइड करना है, द प्रोडक्ट ऑफ माइनस 31 अपॉन 7 मल्टीप्लाई विथ माइनस 1 बाई 2. इस तरह का सम है, पर यहाँ पे हमें वर्ड में दिया गया, तुम वर्ड को पहले नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, अब देखो 5 और 7 यहाँ पे एडिशन का रिलेशन है, इसीलिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा. वी वांट टू गेट द एलसीएम ऑफ 5 and 7 एंड वी नो दैट व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 and 7. 7 5 are 35. Because of their both number are the prime number, so they have no common factor between them. So here minus 13 multiply with 7 upon 5 multiply with 7, 12 multiply with 5 upon 7 multiply with 5, divide by, here cross multiplication, so they have no need to get the LCM of denominator. Only we can multiply the numerator with the numerator and denominator with the denominator. Minus 31 multiply with the minus 1 upon 7 multiply with the 2.
So here, let me get the simplification. 13 7s are 91 plus minus minus upon 35 plus 12 5s are 60 upon 35 divide by 31 1s are 31 minus minus plus and 7 2s are 14. Okay, now we are getting the simplify minus 91 plus 60 upon 35 divide by 31 by 14. So opposite sign subtraction, bigger value minus smaller value, and sign will be consideration as the bigger value. So 91 minus 60 become a 31, but bigger value is 91 और their sign is minus, so answer will be minus upon 35. अब यहाँ पे डिवीज़न की साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दीजिए और 31 अपॉन 14 का रेसिप्रोकल ले लीजिए 14 अपॉन 31. सो माइनस 31 मल्टीप्लाई विथ 14 अपॉन 35 मल्टीप्लाई विथ 31. 31 कट, यहाँ पे 7 2s are 40, 7 5s are 35, 7 also be cut. न्यूमिनेटर में बचा है 2 और यहाँ पे माइनस, तो माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में बचा 5 इज आवर आंसर. जो क्वेश्चन में पहले बताया था उसी तरह से हमें सोल्व करना है. ठीक है, पहले आपको समझना होगा कि जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम, इसको हम न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. देन यू कैन गेट द स्मॉल एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन. ओके, so this is the question number 12 and 30. Write down in your fair book. The 14 is divide the sum of 65 upon 12 and 12 by 7 by their difference. तो अभी ये मैं पूरा करवाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा देता हूँ 14 में. ठीक है, क्या है कि भाई आपको एक एग्जाम्पल इस तरह से दिया है 65 अपॉन 12 प्लस 12 अपॉन 7. इन दोनों का एडिशन को उनके सब्ट्रैक्शन से हमें डिवाइड करना है. ठीक है, वो जो एग्जांपल किया ना उसी तरह से पहले छोटे छोटे 2 एग्जांपल्स कंसीडर करने हैं, देन सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में यहाँ पे इस तरह से जो प्रॉपर्टी अप्लाइड की है वैसे ही हमें करनी है. Okay, so write down both question. Now the last question of exercise 1.7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15. 14 तो आपने कर लिया, होमवर्क में 2 हो गए. If 24 trousers of equal size can be prepared in the 54 meter of cloth, मतलब 54 मीटर क्लॉथ में से इक्वल साइज के 24 ट्राउज़र तैयार हो सकते हैं. then what length of cloth is required for the each trouser, मतलब एक ट्राउज़र के लिए कितना मीटर कापड़ चाहिए, कितना मीटर क्लॉथ हमें चाहिए. then start with the 24 trouser. 24 trouser is equal to how many required meter? 54 meter. Then one trouser is equal to how much meter? ठीक है,
सो ये भी वही तरह का एग्जाम्पल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 24. सो वी नो दैट 54 upon 24, 54 become a 6 9s are 54 and 24 6 4s are 24, 6 6 cut 9 by 4 meter, 9 by 4 meter cloth is need for the one trouser, each trouser. Okay, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.7 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग से सभी एग्जांपल्स अच्छे से सोल्व करके अपनी फेयर बुक में लिख लेना. ठीक है, तो रिमेनिंग लास्ट टू टॉपिक ऑफ द रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन्स एंड रेशनल नंबर्स बिटवीन द टू रेशनल नंबर्स. तो फर्स्ट वी नो अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन इज. अब तक हमने पढ़ा है 6 से स्टार्ट किया था हमने. स्टैंडर्ड 6 में हमने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स. इन द 7th स्टैंडर्ड वी आल्सो बी लर्न अबाउट द होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. ओके, इन द स्टैंडर्ड 8 we have learned about the natural numbers, whole numbers, integers and rational number. इंटीजर्स से लेकर नेचुरल नंबर से लेकर हम रेशनल नंबर तक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं. ठीक है, लाइक दिस 0 से स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4. 0 इज़ द न्यूट्रल नंबर और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स है. अब मैं बात 0 से 1 की करूं, इन दोनों के बीच में अगर मुझे रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है, तो सिर्फ इतने इसको मैं जूम करूँगा, ठीक है, मैग्नीफाइड करूँगा, तो यहाँ पे एक मुझे नंबर दिखाई देगा 0 और 1. उसके बीच में एक नंबर आएगा 1/2, हाफ, इनका हाफ. अगर मैं इसका भी मैग्नीफाइड करूँ इस नंबर को भी, तो 0 1/2 है तो यहाँ बीच में आ जाएगा 1/4. क्या आ जाएगा? 1/4. मतलब क्या है, आप नंबर लाइन में इनफाइनाइट तक कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलेंगे. कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट. अगर इसको मैग्नीफाइड करूँ तो वी कैन अगेन अपियर 0 to 1/8 1/4. इस तरह से मिलते ही जाएंगे हमें. ठीक है, तो कोई भी नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं जो ये इसके साथ रिलेटेड है. ठीक है, अगर मैं आपको कोई भी नंबर का रेशनल नंबर आपको कोई भी दिया हो और उसको आपको रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे, तो इट इज़ टू सिंपल मेथड. मैं यहाँ पे 3-4 करवाऊँगा. लाइक आपको 1/2 के फॉर्म में चाहिए, तो आप क्या करोगे? 0 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2. यहाँ पे -1/2 -2/2 -3/2 -4/2. अल्टीमेटली आप देखो इसका हाफ हो गया 1/2 और ये 2/2 का मतलब हो जाएगा 1. देन 3/2 का मतलब 1 इंटीजर एंड 1 हाफ. 4/2 का मतलब हो जाएगा 2. सेम हियर -1 हाफ इट बिकम बिटवीन द 0 to 1 और -2/2 इट बिकम -2. देन -4 1 -1 -2 देन -3 अप टू सो ऑन. अगर हम इनसे भी छोटा नंबर रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना चाहते हो नंबर लाइन पे, तो आप इस तरह से कर सकते हो. 0 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3. इनसे भी छोटा रेशनल नंबर है ये. -1/3 -2/3 -3/3 -4/3 ठीक है, तो ये 1/2 से भी छोटा नंबर है रेशनल नंबर. तो यहाँ पे भी उसी तरह से होगा. यहाँ पे
0 और 1 के बीच में 1/2 एक ही रेशनल नंबर हमने रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे 0 है 0 और यहाँ पे 1/3, 2/3 और 3/3 become a 1, 6/3 become a 2, 9/3 become a 3. Same here. Let's see, -3/3 become a -1, -2 और -3. तो 0 to 1 के बीच में यहाँ पे एक ही रेशनल नंबर था, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 1/3 एंड 2/3. तो हम इस तरह से कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम 4 ले रहे तो हमें 4 नंबर बीच में मिल जाएंगे, 3 नंबर्स। इस तरह से हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। अब रेशनल नंबर्स की बात आई तो आप यहाँ से ही देख सकते हो। अगर मैं आपको बताऊँ कि मुझे 1/3 से 7/3 के बीच के नंबर्स चाहिए, रेशनल नंबर चाहिए, या तो -7/3 से -2/3 के रेशनल नंबर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि भाई फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन -1/8 to -5/8, है ना। तो कोई भी रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच का नंबर फाइंड करना हो तो पहले तो आपको वो दोनों लाइक फ्रैक्शन होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आपको वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दोनों के डिनोमिनेटर पहले सेम करने हैं। क्योंकि देखो, आप कोई भी नंबर लाइन ले लीजिए, उसके सभी के डिनोमिनेटर तो सेम ही मिलेंगे, है ना। तभी हम अच्छे से देख पाएंगे कि किसके बीच में कितने नंबर आते हैं। सो यहाँ पे -1 से -5 तक के रेशनल नंबर बीच की बात करें तो हमें क्या क्या मिलेगा? -2/8, -3/8 एंड -4/8, है ना। अगर कोई दूसरा नंबर की बात करें, -5/12 टू -11/12, तो इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर हो गए? यहाँ पे -6/12, -7/12, -8/12, -9/12, -10/12। बात आई समझ में? अब अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल -1/2 टू -4/3, इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर चाहिए 3, 4 जितने भी आपको बताए हो उतने, तो आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज द बोथ डिनोमिनेटर विल बी डिफरेंट। सो फर्स्ट वी कैन कन्वर्ट इनटू द सेम डिनोमिनेटर बाय द LCM. So here LCM of 2 and 3 is 6. We know that very well. So now we are getting the 3 multiply with the numerator and denominator. So we can get -3. -3/6. 2. 4 2 is 8. -8/6. Now it's okay. Okay. So -3/6 and -8/6. अब इनका हम, इन दोनों के बीच का हम जो रेशनल नंबर है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना। -4/6, -5/6, -6/6 एंड -7/6, ये हो गए इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स। और एक और बात, अगर आपको इस तरह के नंबर दिए गए हो कि -2/3 एंड -4/3 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करो, इन दोनों के बीच के 5 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो सर इसके बीच में तो सिर्फ एक ही रेशनल नंबर आएगा, -3/3, then how can find the 5 numbers, है ना। क्योंकि अगर आप -2/3 और -4/3 के बीच में देखो, -2/3 और -4/3 के बीच में एक ही नंबर आएगा, -3/3। तो इसके बीच में 5 नंबर्स कहाँ से निकाल के लाए? तो इसकी मेथड है,
कोई भी रेशनल नंबर है उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ले लीजिए। अगर आपको दिए गए दोनों रेशनल नंबर के बीच में सफिशिएंट रेशनल नंबर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप दोनों रेशनल नंबर्स के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करके बाद में आप लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे -2/3 का एक रेशनल नंबर ले लिया, -2/3 मल्टीप्लाई विथ 10 मल्टीप्लाई विथ 10, तो यहाँ पे भी मुझे -4/3 मल्टीप्लाई विथ 10 मल्टीप्लाई विथ 10। हम 10 ही करेंगे तो हमें क्या सिंप्लीफिकेशन में इजी रहे। सो हियर 2 10s are 20, -20/30 एंड -40/30, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही रहा। अब देखो -20 से -40 के बीच में मुझे 20 रेशनल नंबर मिलेंगे, जिसकी अगर आप वैल्यू निकालो डेसिमल में तो इन दोनों के बीच में ही मिलेगी। दैट इज़ द फाइनल। अगर आप -21/30, -25/30, -31/30, -34/30, -35/30, इन सभी का अगर आप कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करो, उसका डेसिमल निकालो, तो डेसिमल इन दोनों नंबर के बीच का ही होगा, मतलब यहाँ कहीं ही होगा ये नंबर। दैट इज़ द फाइनल थिंग। हाँ, जो ये नंबर मिले हैं मुझे वो सभी नंबर 20 to 20 नंबर -21/30 से लेके -39/30 तक के सभी नंबर्स का आप अगर डेसिमल निकालोगे तो डेसिमल सभी नंबर यहाँ कहीं पे ही मिलेंगे। अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो पहले आप इन दोनों का डेसिमल नंबर निकाल लीजिए, ठीक है, बाद में इन सभी का कैलकुलेटर में एक बार ट्राई कर लीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर हम उसके इक्विवेलेंट रेशियो निकाल रहे हैं तो उसकी बेसिक वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन भी कर सकते हैं, और किन ही दो रेशनल नंबर के बीच में कई सारे रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों थियरी आप आपकी बुक में अभी लिख लीजिए।